Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the different types of the industries, manufacturing industries, and in that phrases we have discussed sugar industry at last. Then after manufacturing industries has been given that are mineral based, so few of them has been deducted from your syllabus by the CBSE. The next topic that is in your syllabus is automobile industry that we are going to discuss. All types of the vehicles. See that automobile industry provide the vehicles for quick transportation of goods and services and passengers. किसी भी टाइप के व्हीकल्स जिससे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आपके पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हो, द बोथ विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑटोमोबाइल इन इंडिया. Truck, buses, car, motorcycle, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in the India at various centers. ठीक है, यानी इंडिया में इस टाइप के सारे ऑलमोस्ट चीज़ें जो बनती हैं. इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन इंडिया आर दिल्ली में लोकेटेड हैं, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु. ठीक है, और अब जो हम नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे दैट इज़ आईटी इंडस्ट्री. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया and currently this industry providing a maximum opportunity of a private sector job. So under this section going to discuss about the electronic industries covers, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़. तो व्हाट्सोएवर द टूल्स विच आर बीइंग यूज्ड इन आईटी सेक्टर are prepared by the electronic industries like wide ranges of from transistor set of television, telephone, cellular telephone, pagers, telephone exchange, radars, computers and many others equipments requires by a telecommunication industries. ठीक है, बेंगलुरु को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है. द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन बेंगलुरु. अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. 2010 to 11 STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन अ मेजर एरियाज around 46 locations at the different centers of India as it has been located. Major impact of the industries has been on employment generation. It is increasing around known for the 30% of the people employed in this sector are the women. देखिए IT सेक्टर्स में 30% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयर्स हैं वो women है. जस्ट लुक ऑन द मैप. आप वो मैप में देख सकते हो कि IT जो सेक्टर्स की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं जैसे श्रीनगर में लोकेटेड हैं, नोएडा है, मोहाली है, जयपुर है, इंदौर है, हैदराबाद है. तो ये कुछ जो है वो आपके आईटी सेक्टर्स के STPI है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एज वी हैव अर्लियर डिस्कस अबाउट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स of industries in our GDP as it make a very big portion of our GDP, but a basic problem that we generally faces as per the environmental problem. Industries creates a lot of pollution and that creates the environmental degradations. So we will discuss that which kinds of the pollution is being done or made by the industries. So almost all types of the pollution is made by the industries and that is hazardous for our development. How we can control it that we discuss. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन. So generally a gases that is known as CO2, carbon monoxide, sulfur dioxide is releases or emitted from the industries that mix into the environment and make environment polluted, air polluted. इसके अलावा जो चिमनी से इंडस्ट्री से जो लीडिंग ग्लोबल जो धुआं निकलता है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है. इसके अलावा ओजोन लेयर का डिस्प्लेशन भी करता है. ठीक है, एयर पोल्यूशंस की वजह से ह्यूमंस और एनिमल दोनों ही अफेक्टेड होते हैं. प्लांट्स अलाइक ऑल्सो कॉज द डैमेज ऑफ द बिल्डिंग्स. ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वाटर पोल्यूशन भी करती हैं. वो कैसे करते हैं? डंपिंग ऑफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पोल्यूटेड द वाटर. जितना भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको पानी के साथ बहा दिया जाता है और उसके बाद वो बड़ी वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे वाटर को pollute करता है. यू कैन सी द पिक्चर विच इज़ अपीयरिंग ओवर देयर. फिर है वाटर पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड केमिकल वेस्टेज लाइक डाई, डिटर्जेंट, एसिड, हैवी मेटल्स लाइक लीड, लेड, मर्करी, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र. ये सब जो है
जब वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नहीं वाटर में छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर देता है, तो वाटर को पोल्यूट करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री विच आर प्रोड्यूस पेपर, पंप, केमिकल, लेदर, एसिड, डाई, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा जनरेट्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वेटिक लाइफ। देखिए अब ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ का जो मटेरियल रिलीज़ होता है वो जाके सीधे मिक्स हो जाता है बड़ी वाटर बॉडी में, और जिसकी वजह से क्या होता है, बड़ी वाटर बॉडीज़ में एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, द लाइफ इनसाइड ऑफ द वाटर, वो पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाती है। थर्मल पोल्यूशन, thermal pollutions of the water occurs when the hot waters from the factory and the thermal plants is drained into the river and pond before cooling, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन जब होता है, जब पानी को थर्म कर दिया जाता है, पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पानी में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं वो सब मर जाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, फैक्ट्रीज ऑल्सो क्रिएटिंग द नॉइस पोल्यूशन, हाई इंटेंशन साउंड जनरेटेड बाय रनिंग ऑफ द मशीन, सिरन, ड्रिल्स, फैंस एक्सेट्रा लीड टू द नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। इट कॉजेस, अब नॉइस पोल्यूशन की वजह से हम लोग को क्या होता है, इरिगेशंस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब द नेक्स्ट एंड द मोस्ट important टॉपिक, दैट एज वी नो दैट इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, so how and what should be the best remedy to control this environment degradation? So this is very much important things, few things that is given over there. तो इसमें सबसे पहले minimizing use of water for processing by reusing, recycling it and two or more successive stage. जो भी वाटर आप रिलीज़ करने जा रहे हैं उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, या उसको फ़िल्टर करने का चाहिए। हार्वेस्ट ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, जितना वाटर आप वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के केसेस में, उतना वाटर आप पहले हार्वेस्ट करें, यानी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना ज़रूरी है। ट्रीट हॉट वाटर्स इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड, जो भी हॉट वाटर आप कर रहे हैं उसको पहले ट्रीट करिए, मतलब फर्स्ट यू मेक इट कूल, देन treat the industrial effluents can be done by the three phases. Primary treatment, mechanical means, involve screening, grindings, फ्लोकराइजेशंस, सेडिमेंटेशंस, ठीक है। यानी जितना भी वाटर आप या जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस हैं रिलीज़ कर रहे हैं उन सबको ट्रीटमेंट करिए। तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों से पानी को साफ़ किया जाए, यानी आप कह सकते हो फिल्टराइजेशन या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरा लगाया जाए ताकि आराम से वो सारा पानी ट्रीट होकर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। नॉइज़ ऑब्जॉर्विंग मशीन्स में भी यूज्ड, और नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, नॉइज़ ऑब्जर्विंग मशीन यूज़ करनी चाहिए। देखिए भाई लास्ट टॉपिक है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एक मेन पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है जो सरकार का है, वो आपका NTPC है। पावर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है। इट हैज़ ISO सर्टिफाइड एंड EMS, इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। दिस कॉर्पोरेशन इज प्रोएक्टिव्स एंड अप्रोचेस फॉर द प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेस वेयर इट इज सेटिंग अप द प्लांट्स, ठीक है। उसके दिस हैज़ पॉसिबल थ्रो, तो ये सब चीज़ें थी आपकी। तो NTPC जो है वो एक बेसिक इंडिया का सबसे बड़ा पावर कॉरपोरेशन है जो पावर की रिक्वायरमेंट जनरली पूरी करती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द होल चैप्टर एंड so this chapter, this is the last video of that particular chapter. In the next video we'll discuss the next chapter. Thank you very much.